Hello student, welcome to our online classes. Today we will study moral subject. Now we start chapter 2 respect aged pupil. वृद्ध लोगों का सम्मान करें. If your grandparents are alive, you are very fortunate. You can enjoy a lot of things with them. You can go to them for advice as they will surely give a sympathetic ear and unconditional affection. यदि आपके दादा दादी जीवित हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं. आप उनके साथ ढेर सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं. आप उनके पास सलाह के लिए जा सकते हैं क्योंकि वे निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्ण और बिना शर्त के आपको क्या देंगे, स्नेह देंगे. ठीक है. They are storehouse of endless stories and life experiences. You can gain much by listening to them. They ensure that you are well fed and you become strong. They make an effort to cook dishes for you. You can play indoor games with them and involve yourself physical and mind games. You must communicate with your grandparents on regular basis. If they live at a distance, make it point to visit them frequently. आप वे अंतहीन कहानी और जीवन के अनुभवों का भंडार है. उनके पास क्या है, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं आपको सुनाने के लिए. आप ऐसा हासिल कर सकते हैं बहुत कुछ. उन्हें सुनकर वे सुनिश्चित करते हैं कि आपको अच्छी तरह से कैसे खिलाया जाए और आपको कैसे मजबूत बनाया जाए. वे आपके लिए व्यंजन बनाने का प्रयास करते हैं. आप उनके साथ इंडोर गेम खेल सकते हैं. खुद को फिजिकल और माइंड गेम्स में भी शामिल कर सकते हैं. आपको अपने दादा दादी के साथ नियमित रूप से संवाद करना चाहिए और यदि वे दूर रहते हैं तो उनसे बार बार मिलने का निश्चित करें. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. एटीट्यूड टुवर्ड अगेन एंड ऑल पीपल. वी interact with all people every day. Do you give them ample respect? Do try understand them? They may seem weak as their bodies slow down, unhappy and worried, with physical limitation, with poor eyesight hindering. At the same time, they have many things to share, interesting stories and tales, life experience, advice and help, love and affection. So always keep a positive attitude toward them. Go out of the way to help, sit with them and give them company. Be parents and never answer them back. Give them due respect all the time. Be aware of their health problems and try to help them. So a positive and respectfully behave toward them. उम्र बढ़ने और बूढ़ों लोगों के प्रति रवैया. हम हर दिन बूढ़ों लोगों के साथ बातचीत करते हैं. क्या आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं? वे आपको कमज़ोर लग सकते हैं क्योंकि उनके शरीर क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं. दुखी और चिंतित, शारीरिक सीमाओं के साथ खराब दृष्टि और सुनने के साथ साथ उनके पास साझा करने के लिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे दिलचस्प कहानियाँ जीवन की सलाह का अनुभव करता है और प्यार और स्नेह में भी मदद करते हैं. इसलिए हमेशा हमें उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए. उनकी मदद करने के लिए हमको हर संभव प्रयास करना चाहिए. उनके साथ हमें धैर्य रखना चाहिए. उन्हें कभी भी हमें जवाब नहीं देना चाहिए. हर समय उचित सम्मान देना चाहिए. उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए. उनके प्रति हमें सकारात्मक और सम्मानजनक व्यवहार दिखाना चाहिए. इसमें आपको पॉइंट्स दिए थे कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं या हमारे घर में भी कोई एजेड व्यक्ति रहता है तो वो कैसे होते हैं एज के साथ साथ, और हमारा रवैया उनके प्रति कैसे हो जाता है, वो सब आपको इस चैप्टर में समझाया है. तो हमको उनके प्रति हमेशा सकारात्मक और उनके साथ हमें सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए. ठीक है. अब हम इस चैप्टर को एक स्टोरी से समझेंगे. स्टोरी दी है आपको. नीरज हैड गॉन फॉर अ स्कूल डे ट्रिप to the Air Force Museum. This trip also had his grandfather, who was ex-Air
first person to guide and explain the children. Neeraj was excited about his grandfather accompanying the group, but his grandfather was little worried. Neeraj restlessness. The trip went on smoothly toward the end. Neeraj saw a gift shop with a small model aircraft. He ran toward the shop, leaving behind his grandfather, who was walking with a little difficulty. On realizing that his grandfather was left alone, he started calling out names from the distance. Neeraj was calling his grandfather by using words like slow motion, stupid, and dumb. The teacher overheard this and was extremely upset with Neeraj. She warned him to modify his inappropriate behavior, feeling which she would never take Neeraj for any outing. Neeraj realized his mistake and apologized to the teacher. He went and hugged his grandfather and apologized in front of the whole class. His grandfather had tears in his eyes. तो आपको एक स्टोरी बताई है इसमें कि एक नीरज नाम का लड़का था। नीरज जो था वो स्कूल डे ट्रिप के लिए एयरफोर्स म्यूजिशियन पर गए थे। वो उसके साथ कौन गया था? उसके दादाजी। इस यात्रा में उनके साथ उसके दादाजी भी थे, जो बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे थे और समझाने के लिए पूर्ण वायुसेना के जो वो व्यक्ति थे, जो पूर्व जो वायुसेना में थे, वो उसमें कार्यरत थे और रिटायर्ड व्यक्ति थे। नीरज अपने दादाजी के साथ समूह में आने को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन दादा नीरज के लिए उनको बेचैनी हो रही थी और वे थोड़ा सा सावधान भी थे उसके लिए। यात्रा शुरू हुई और वो सुचारू रूप से चल रही थी। अंत में नीरज ने हवाई जहाज के छोटे मॉडल के साथ एक उपहार की दुकान देखी, तो वह अपने दादा को छोड़कर दुकान की ओर भागा, और जो थोड़ी मुश्किल से चल रहे थे। जो दादाजी थे उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। यह जानकर कि उनके दादा अकेले रह जाएंगे, उन्होंने क्या करा, दूर से ही उनको नाम से पुकारना शुरू कर दिया नीरज ने। नीरज अपने दादा को बुला रहा था। उसने अपने दादा को क्या कहा? धीमी गति, बेवकूफ़ और गूंगा जैसे शब्दों का उपयोग किया उसने अपने दादा के लिए। जो नीरज था उसने अपने दादाजी के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया। शिक्षक ने यह सुना तो नीरज ने यह देखा कि उसका टीचर उसकी बातें सुन रहा है, तो नीरज क्या हो गया? परेशान हो गया। उन्होंने उसे अपने अनुचित व्यवहार को संशोधित करने की चेतावनी दी। ऐसा न करने पर वह नीरज को कभी भी किसी आउटिंग के लिए नहीं ले जाएगी, ऐसा उसकी टीचर ने कहा। नीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने टीचर से माफ़ी मांगी और उसने अपने दादा को गले से लगाया और अपनी पूरी क्लास के बच्चों के सामने उसने अपने दादा से माफ़ी मांगी। तो उसकी दादा की आंखों में आंसू आ गए थे। तो इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सकारात्मक रवैया होना चाहिए हमारा उनके प्रति, और उनको हमेशा हमको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, अब आपको इस कहानी को पढ़ना है, इस चैप्टर को एक बार रीड करके देखना है। थैंक यू।